and also selected as an trainee by a program sponsored by Cisco named as Boost 3.0 program. Yeah, that's all. Priya? Okay. So thank you, Pasna, for inviting me. And uh, myself, Priya Malik, and I'm an upcoming product intern at Adobe. I will be interning there in the summer of 2024. And talking about my achievements, I have been selected as an FFE Amazon Scholar in my first year, and I have also been a Postman Student Expert. Apart from that, I have participated in various hackathons and also won a few of them. So you can call it as a hobby of mine to participate in hackathons because they are actually fun, and you get to learn something in a quicker manner. Like वो डंडा आ जाता है ना सर पे कि आपको ये काम करना है. So that's why I love participating in hackathons. And if you also, want to explore that area also, then also I'm open to questions for that. So let's start with the coding journey of yours. Have you prepared? From where you prepared? Which platforms you choose? Which resources do you follow? So may I continue, Priya, if you don't mind? Yeah, yeah, sure. Yeah, so I started my coding journey in my first year. By first, I learned the basic language by learning a particular language. For that, I learned C++ and STL, which is the standard type template library. By it includes the standard template library of C++ only. After that, I switched to solving some DSA question. But after solving some DSA question, I realized that there are many topics which I don't know. For that, I opt a course which is sponsored by the Algorithm. Algorithm basically is a coding platform like Coding Ninja. From there, I just learned the coding skills and stuff like that. For interview prep, I mostly do a sheet by Striver, or you can take any sheet. Every sheet contains the mostly the same questions. So I opt for the Striver sheet, and yeah, Priya. All right. So, firstly, in my first year, I brought this course by Coding Ninjas, and it covered basics of the language C++ as well as the data structures and algorithms. And while doing the course, I realized that to master certain topics, I need a bit more of practice. But what my instructor suggested me to complete the course first and then move on to practicing the questions, as that would help me in leveling up, as well as they suggested me to participate in lead code contests and code chef contests in order to improve my improve my problem solving skills. So first I completed that course. From there, after that, I did this SD sheet by Take You Forward. You must have heard the name Striver. So that's the sheet by him, and it covers almost all the concepts, and it touches almost all the important topics on which other questions are also framed, be it in your interviews or be it in your online assessments. So yeah, that when I was following the sheet, simultaneously I kept on giving contests on lead code and code chef up in order to improve my problem solving skills. And for interview preparation, um, what we used to do, we used to form groups of 3 or 4 people and take mock interviews of each other, so as to build that environment that we do not get nervous on the day. So that was about my learning as well as my interview preparation. Okay, guys. My next question is, what tips you would like to give to the juniors for making resume? सो टिप्स तो यही होगी कि अपनी अचीवमेंट सारी लिख दो उसमें.
प्रोजेक्ट एटलीस्ट 2 तुम्हारे रिज्यूमे में होने चाहिए। और प्रिया। यस, आई फील कि प्रोजेक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी किसी कॉन्टेस्ट में अच्छी रेटिंग्स हैं, वो भी आपको मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज़ उससे आपको एक एज मिलता है कि येस यू आर इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज़ सी, कोर्स तो एवरीवन डज, कोर्स या फिर आप कहीं से भी करो, नाउअडेज देयर आर मेनी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल। So, to show that you have actually got something out of it, तो कॉन्टेस्ट रेटिंग्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप करते हो तो इट वुड गिव यू एन एज। प्रोजेक्ट्स में यू शुड ऑलवेज मेंशन कि अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो विच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर रिज्यूमे राउंड। एंड अबाउट लाइक how you thought about the idea of the project and how you implemented it. So projects as well as your contest ratings become really important. Apart from that, you should also mention any previous experiences, like your be it society experiences, or maybe you have already interned somewhere. All of that has to be mentioned in your resume. And most important thing is that what recruiters do, they look for keywords in your resume. तो आपके रिज्यूमे में कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो देर आर चांसेस दैट योर रिज्यूमे माइट गेट रिजेक्टेड। सो फॉर दैट, देर आर मेनी वेबसाइट्स and which help you check your ATS score. So using the ATS score, you can judge that whether your resume contains those particular keywords or not. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्लीज मेंशन द टेक स्टैक विच यू आर यूजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इफ यू आर मेकिंग अ वेबसाइट, प्लीज मेंशन दैट यू आर यूजिंग HTML, CSS, JavaScript or Node.js. Or if you are developing an app, so please mention that particular tech stack which you are using. और contest rating जो प्रिया ने बोला, हाँ, that's also important. Okay, guys, my next question is like सब बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो हाउ वाज योर अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, और what strategy would you advise to the juniors to solve a question? Okay. Anushka, you want to go first? Mm, first you, after that I will continue. Okay. So I would say that if you are beginning, then it is obvious that you will face some problems in the beginning. But as you do some 10-15 questions of that topic, after that, what your approach should be that while solving a problem, even if you got like an answer to your question and all the test cases have passed, you should always look for other approaches, so that if you encounter further questions of that topic, those approaches will help you. So you can go to the discussion section on LeetCode or on GFG and look for other approaches of that question for solving it. And you should always solve questions in a time based manner. Like you always have an option to put a timer on your code editor. And उससे क्या होगा कि लाइक आपके ऊपर वो चीज़ आएगी कि हाँ, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है. सो गिव एटलीस्ट 45 minutes फॉर थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन. अगर उसके बाद भी आपसे नहीं होता है, देन ओनली यू कैन रेफर टू द हिंट टू गेट एन आइडिया कि ये कैसे हो सकता है. या प्रिया ने सही कहा। और मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है और आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप एक बार सारे टॉपिक गो थ्रू कर लो। तो वही चीज कि अगर आपको एक ग्रीडी का क्वेश्चन मिला है, आपको लगेगा वो ग्रीडी से सॉल्व होगा, लेकिन ऐसे कुछ टेस्ट केसेस में वो
नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डीपी का प्रॉब्लम है। तो एडवाइस तो मैं ये कहूंगी कि पहली चीज कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 45 मिनट्स दो। अगर नहीं सॉल्व हुए तो आप प्लीज उसके हिंट या सोल्यूशन देख लो। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मैं इसके कैपेबल हूँ सॉल्व करने के लिए कि नहीं। क्योंकि वो टॉपिक अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं आता है तो वही चीज आपको वो चीज टॉपिक सीखना है। तो या Okay, guys. My next question is like do's and don'ts in the interview, your interview preparation. Like Priya suggested, mock interviews, um, do's and don'ts, and like various resources we can follow for the interview. Okay. So the don'ts in interview is that firstly, do not ask for feedback after the interview is over. That I learned, I think, after giving 2 or 3 interviews, that you should not ask for feedback. And in the interview, always highlight those skills, like they will ask for your introduction. So in your introduction, highlight only those things which you are confident about, because you could be questioned about the things you mention in your introduction, that I have done this, I have an experience in this. So you could be questioned on that. So always mention only those things in your introduction which you are confident about. So these are the two tips I can remember as of now. Anushka, would you like to add something? या तो इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लॉन्ग पॉजेज ना लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ट्राई करो कि उसकी अप्रोच, चाहे आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच ही क्यों ना आती हो, उससे बोलो। आप लॉन्ग पॉजेज नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी बोलो, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो हर चीज़ बोल दो। लेकिन प्लीज लॉन्ग पॉजेज मत करना, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और एक और चीज कि जो आप इंट्रोडक्शन दो तो उसमें फंबल मत करना प्लीज, क्योंकि वो बहुत वही चीज नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है जिसपे आपका इंटरव्यू आपको जज करेगा कि हाँ ये एक इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहा है, ये आगे क्या करेगा। और दूसरी चीज, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब अगर तुम्हें उसकी ऑप्टिमल अप्रोच नहीं पता है, तो तुम उसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से समझाओ। उसके बाद उसका हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन करो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वहां तक सही है, मतलब इट्स नॉट कि आपको हर हर बार ऑप्टिमल अप्रोच ही देनी है। इंटरव्यू बस ये देखता है कि आप सोच क्या रहे हो, और बस मतलब वो बस ये देखता है आप सोच क्या रहे हो। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं जा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बस यही है कि मतलब अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाओ, मतलब जो तुम्हें आ रहा है वो इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए। बस। Adding to this, I would like to say that more than your coding skills, they are looking for your problem solving skills. तो आपको आपके दिमाग में जैसे ही कोई भी अप्रोच आती है, आप उनको वो चीज़ कम्युनिकेट करो। एंड उसके बाद अगर लाइक क्या होता है कि इवन इफ यू गेट स्टक, लेकिन इफ द थिंग दैट यू आर एबल टू प्रोग्रेस योर अप्रोच, कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो एंड देन उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप फर्दर सोच पा रहे हो, तो समटाइम्स इंटरव्यूज ऑल्सो गिव यू हिंट्स कि यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट। तो इसीलिए इफ़ यू विल कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, देर आर चांसेस दैट यू विल अराइव एट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्वेश्चन को देखते ही आपको फर्स्टली नहीं आएगा कि ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी। इट्स अ प्रोसेस, तो वो चीज़ धीरे धीरे आएगी। Okay, guys. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जो भी मीटिंग में है। लाइक जनरल हमने कवर कर दिया है। माइक ऑन कर सकते हो आप, कशिश। I had one doubt. आपके इंटरव्यू राउंड्स कैसे हुए थे? Like, what was the process like? Okay, like the number of interview rounds you are asking about. हाँ जी, the number of interview rounds and what all were they? Like, what Okay. exactly?
happened in that interview? Sorry. Okay, so for our role, there was only one interview which had both technical as well as the HR part, and it was around 1 hour long. And questions were mostly based on linked list, arrays, binary search, and strings. I cannot reveal the exact questions, but these were the major topics that were in the that were there that were asked by the interviewer. Okay, thank you so much. No problem. Next question we have is, do you feel any need of doing CP for OE round? मुझे लगता है कि सीपी की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। अगर तुम सीपी करोगे तो ये चीज कंफर्म है कि तुम्हारे से क्वेश्चन हो जाएंगे ओए के, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन के लेवल ओए में काफी अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो एडोबी का इंटरव्यू ओए हो या फिर किसी और कंपनी का। तो मैं एडवाइस करूंगी तुम लोग सीपी करो। प्रिया। तो यस, आई एग्री कम्प्लीटली। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपका फर्स्ट स्टेप इज़ ऑनलाइन असेसमेंट, एंड फॉर दैट द क्वेश्चंस आर on the pattern in which the questions are asked in CP contests. So yes, that would help a lot. so the OA question are mostly from DP graphs. So I think you should prefer, you should do CP as well because the question quality is really good. Is there something like that nowadays more story based questions are asked? Upasna, I think you are mute. Sorry. Yeah, you're Uh, on mute. Next question is there something like that nowadays more story based questions are asked, like to complicate the questions? Yeah, that question are basically the CP question only. In computer coding, you are basically given a paragraph, and then you have to understand that particular paragraph and solve that particular question. Yes, right. Even if you would give contests on CP competitive programming platforms, you would find कि mostly questions story वाले ही होते हैं, and OAs में भी story हम्म। based ही आते हैं, so that they want कि आप story से deduce करो कि हाँ इसमें पहला तो क्या चीज़ हो रही है, कौन सा data structure use होगा, and फिर इसका solution क्या होगा. So they want you to think uh, in a in an another way rather than giving direct questions. Guys, किसी और का क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ What? ऑल यहाँ पर, या प्लीज कंटिन्यू। Sorry to cut you. आप बोलो please. मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग कौन से ईयर के हो मेजोरिटी में, जिससे हम उस हिसाब से मैं बताऊँ। Second year. ओके ओके। और आप चैट नहीं सकते हो। फर्स्ट ईयर। ओके। कशिश, प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन। I was asking कि what all will you do during your internship if you have any idea मतलब as a product intern what are the tasks या responsibilities? प्रिया, इफ See, यू वांट टू। actually, this is not a specific role. It is a technical role. So we would be assigned a project and a particular tech stack that we have to work upon. They do ask your preference, but the allocation is mostly random. So you could be allotted front end or back end, or you could be allotted any other language which you have not even learned before or seen before. सो बेसिकली हमें असल में यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और उन यूनिट के एक मैनेजर होंगे और वो हमें गाइड करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और वही हमें बताएंगे कि हमें इसमें कौन कौन से टेक स्टैक वगैरह यूज करनी है। सो या।
Okay, thank you so much. आई गेस अब किसी का क्वेश्चन नहीं है. एक और चीज़ मैं एडवाइस करूँगी, जो जो फर्स्ट ईयर में है तो वो कोडिंग की जर्नी अभी से स्टार्ट कर दो। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हो तो तुम लोग प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत हेल्प मिलेगी। और जो सेकंड ईयर में है, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग छू सकते हो, लेकिन उसमें डीप में मत जाना, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू प्रेप भी करनी है, और इंटरव्यू प्रेप सीपी से काफी अलग होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम लीड कोड से कर सकते हो। जैसे आपके टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन है, और आपकी स्ट्राइवर की शीट है, या फिर 75 ब्लाइंड लीड कोड एक शीट है, वो भी कर सकते हो। तो इंटरव्यू की प्रेप तुम्हारी लीड कोड से हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें ओए की प्रेप करनी है तो तुम्हें सीपी करनी पड़ेगी। क्या? पजल्स भी आती है जीएफजी वाली. हाँ, हाँ, वो डिपेंड भी करता है कि आपका ओए किस उसका है, मतलब कंपनी का। क्यों कुछ कंपनी सीधे आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ आपसे एमसीक्यू भी पूछते हैं आपके फंडामेंटल सीएस के। सो या। यस, वो वेरी कर जाता है, बट वैसे मेजॉरिटी अगर सब्जेक्ट्स देखें तो कोर सब्जेक्ट्स में ओप्स, ओएस, डीबीएमएस एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स सो मेन ही है फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बाकी दे कैन आस्क लिटिल बिट क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो मेजॉरिटी यही हो जाता है। सेकेंड ईयर में मोस्टली कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ ही जाते हैं सिलेबस में भी, तो उस तरफ भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ जाता है। एज अनुष्का सेड कि फर्स्ट ईयर में आपके पास काफ़ी टाइम भी होता है, तो आप सीपी अगर स्टार्ट करोगे भी, इवन इफ स्टार्ट आप स्लोली करते हो, धीरे धीरे यू वुड बी एबल टू कैच अप विद इट। Next question is, for second year, should we start doing to CP now as internships will approach in 4 5 months, or only DSA will work with interview prep? देखो यार, इस टाइम तुम सीपी पे ज्यादा ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो तुम सीपी के करो। बाकी तुम पूरा दिन अपने डीएसए पे दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें डीएसए इंटरव्यू के लिए दे सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तुम्हें कोर सब्जेक्ट भी पढ़ना है, चाहे वो ऊप्स हो गया, ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया। और उसके साथ साथ तुम्हें डीएसए के मतलब डीएसए के स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करना है, जो आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ, सीपी करो, लेकिन ज्यादा मत करना, मतलब क्योंकि अभी तो तुम स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चन ना बने। बट इट्स ओके, मतलब चलता है इतना, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। पर तुम्हारा मेन फोकस अभी इंटरव्यू पे होना चाहिए, सीपी पे नहीं होना चाहिए। वो मैं वही कह रही हूँ, सेकंड ईयर को अभी सीपी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इंटरव्यू पे करो। लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो तुम लोग सीपी का देखो, क्योंकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि तुम ओए डेटे टाइम डरोगे नहीं कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है। तो वही चीज कि अभी इंटरव्यू पे फोकस करो, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सीपी का तुम लोग करो रोज। प्रिया, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? No, Anushka covered everything, so I have nothing to add. Next question is, how to improve communication skills. मॉक इंटरव्यू दो बस। प्रिया, Yeah. डू यू वांट टू ऐड समथिंग? मॉक इंटरव्यू एंड एक जो चीज़ आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रॉम बिकॉज मिरर। आप कैसे लग रहे हो एंड या, कैसे आप बोल रहे हो, सो वो चीज़ भी हेल्प करती है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जब तुम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो ट्राई करना कि तुम उसे बोल बोल के सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यूअर को समझाना है। तो उससे क्या होगा, तुम लोग को आदत पड़ जाएगी कि तुम्हें क्वेश्चन करते हुए समझाना कैसे है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं वही कह रही हूँ ना, लॉन्ग पॉजेस। वो लॉन्ग पॉजेस इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग मन में सोचते हैं, इंटरव्यू को बताते नहीं है। तो इसलिए जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसे बोल के सॉल्व करो कि तुम ये चीज क्यों कर रहे हो। अगर तुमने कोई डेटा स्ट्रक्चर लिया है तो तुम उसे क्यों ले रहे हो,
जैसे कि किसी क्वेश्चन में तुमने मैप लिया है, ठीक है, तो तुम उसे बोलोगे कि मैप की जगह मैं अनऑर्डर मैप ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो वो चीज तुम लोग बोल बोल के करोगे ना, तुम लोग को आदत हो जाएगी। तो वो तुम्हारी इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ट्राई करो उसे बोल के सॉल्व करने का।